आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का आज 8वां दिन है। 28 फरवरी 2026 को इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी युद्ध की आग में अरब के करीब 10 देश झुलस रहे हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के लिए भी बजट का संकट जो है वो खड़ा होने लगा है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान पर हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान मध्य पूर्व के अरब देशों में अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। बता दें कि ईरान में इजराइल अमेरिका के 1300 हमले हो चुके हैं। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अयातुल्ला अली खोमेनी के बेटे मुज्तबा को उनका उत्तराधिकारी और ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान में अब तक 1332 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में 8 दिनों में 1300 हमले हो चुके हैं। 14 मेडिकल सेंटर भी निशाने बनाए गए हैं। ईरान के कई शहरों में अब पानी बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है। यानी कि अमेरिका का दावा है कि ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने और IRGC के कमांडरों को ढेर करने का है। यानी कि कुवैत, बहरीन और UAE समेत कई अरब देशों में ईरान के हमले में 20 अमेरिकी मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और बताया कि ईरान की 2 और बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया है। 4 ड्रोन को भी मार गिराया गया है। बता दें कि ईरान ने बीती रात करीब 5 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इस वजह से बीती रात लाखों इजरायली लोगों को बम शेल्टर में रहना पड़ा। ईरान अब तक इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग चुका है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। इजराइल US हमलों पर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा है कि हम ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि इस रास्ते पर हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। Throughout in history, the Iranian nation has faced many great difficulties and threats, yet it has always defended its independence and dignity through faith, resistance, and unity. The path of the Iranian nation today is the path of faith and resistance, a path inspired by the true teaching of Islam and by the example of great figures such as Imam Hussein alayhi salam. He taught humanity that even if we have no religion, we should still remain free and never accept oppression. For this reason, we, the people of Iran, clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for us, both are honor and happiness. قل هل تربصون بنا إلى إحدى الحسنيين. In closing, I would like to sincerely thank to the organizer of this ceremony and the dear people of India who have expressed sympathy and solidarity with the people of Iran during these difficult days. This relation between the people of Iran and India go back centuries, built of deep cultural, spiritual, and civilization ties. Your presence in this gathering is a sign of those deep connections. We pray to Almighty Allah to bless the soul of our martyred leader with His great mercy, great patience of His followers and admirers, and guide all of us on the path of truth, justice. Dear brothers and sisters, what is happening today is nothing simply a political or military conflict. This struggle is actually a continuation of the historic struggle between truth and falsehood. On one side stand faith in God, human dignity, justice, and the right of nations to live freely
and independent. On the other side stand oppression, injustice, domination, and powers that believe they can decide the fate of nations through force and aggression. The brutal military aggression by the United States and the Zionist regime against the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran is a clear example of this injustice. This aggression is not only against Iran, it is also against the principles of international law, against human dignity, and against the right of nations to determine their own future. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये युद्ध हो रहा है एक तरफा प्रहार है, एक तरफा आक्रमण है, एक तरफा मैं कहता हूं अराजकता है अमेरिका की, और वो ईरान जो हमारा दोस्त रहा है उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक उसका राष्ट्राध्यक्ष मार दिया जाता है बमबारमेंट करके, और स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने मारा है, 30 बम गिरा के। उस पर जुबान नहीं खुल रही मोदी जी, शर्म आती है हमें कि आप हमारे। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की समाप्ति कब होगी, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस युद्ध का और कितना ज़्यादा असर विश्व के अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।